My dear students, listen carefully. Today we have to study about kingdom Planti and kingdom Animalia. Before this, we have discussed about nutrition in fungi and what are the diseases caused by fungi. Today, आज हम लोग को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ना है। किंगडम प्लांटी मीन्स प्लांट। The empire of plants is known as kingdom planti. What do you mean by kingdom planti? The empire, in our own word, this is the empire of plant, and empire of plant is known as planti. What are the characters of plants? जो प्लांट के कैरेक्टर है वही प्लांटी हो। जैसे आपने पिछले क्लासों में छोटे क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। Such that I have written this. Here is planting, kingdom planti, and here is kingdom animalia. It includes multicellular, organism, except for some primitive algae. Some primitive algae. They are eukaryotics in nature. They are eukaryotic. They have eukaryotic cells, and all the cells consist of well differentiated cell organelles. Or the cell wall consists of cell wall. तभी जानते हैं कि प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल consists of cellulose, they reserve food. They reserve their food and starch and lipids Why? They have plastids. They have plastids. For photosynthesis. So they are autotrophic in nutrition. Autotrophic nutrition. एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेना है। They grow in all their life.
once again I am talking about kingdom Plantae. It includes multicellular living organisms except some primitive algae. Some primitive algae. कुछ छोटे छोटे एलगी को छोड़कर बाकी सब में बहुत सारे सेल्स वाले लिविंग थिंग पाए जाते हैं. They have eukaryotic cells and all the cells consist of well differentiated cell organelles. ये यूकैरियोटिक सेल रखते हैं अपने पास और इनमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स रहते हैं. सारे सेल्स ऑर्गेनल मौजूद होते हैं. कोई भी सेल ऑर्गेनल्स में एब्सेंट नहीं होता है. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज. सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है. They reserve their food as starch and lipids. They have plastids for photosynthesis. आप जानते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं. इनका रंग हरा रहता है क्योंकि इनके अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जिनको क्लोरोफिल भी कहा जाता है. They grow in all their life. अपने संपूर्ण जीवन में इनमें वृद्धि होती है. और इसमें एक और चीज है. Their cell consist of a large vacuole. इसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है. आपने पढ़ा होगा इस तरह का ये सेल का. इस सेल के स्ट्रक्चर में बना के दिखा दे रहा हूँ. एक बहुत बड़ा वैक्यूल इनमें पाया जाता है. इसे कहते हैं वैक्यूल. अब हम प्लांट किंगडम के बाद हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे. एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं. एनिमल सेल किंगडम एनिमलिया के बारे में बता रहे हैं. एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल. But the cells are not bounded by cell wall. इनमें सेल वॉल से बॉन्डेड नहीं होता है. They are also consist of eukaryotic cells, but their cells are not bounded by cell wall. Second point में आइए. जैसे इसमें they have eukaryotic cells and these cells consist of cell wall. Well differentiated cell organ it also consists of well differentiated cell organ. Their cells are also consist of well differentiated. They have not plastids or chlorophyll. So they are heterotrophic in nature. Heterotrophic in nutrition. Fourth point है they move from place to place except some animals. Which are stagnant. Except इसमें बता रहा हूँ मैं except some animals like
एंड पैरामीशियम, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। 5 एक बार फिर से इसको समझिए। किंगडम एनिमलिया, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, but cell are not bounded by cell wall. Their cells are also consist of well differentiated. उनमें सारे सेल ऑर्गन पाए जाएंगे। They have plastids. They have not plastids और chlorophyll, so they are heterotrophic in nature, except कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल है लेकिन प्लास्टिड पाए जाते हैं, यूग्लिना और पैरामीशियम। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में जाते हैं, अपने सेंटर की तलाश में जाते हैं, एक्सेप्ट सम एनिमल्स विच आर स्टैग्नेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो स्टैग्नेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोसोलोनिया, LUCO, ल्यूकोसोलोनिया, समुद्र में पाया जाता है, मैराइन वाटर में, और ये स्टैग्नेंट हो। फाइलम पॉलीफेरा का मेंबर है, आगे पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद एनिमल्स में द सेल्स ऑफ एनिमल्स consist of a lot of small vacuoles. इनके सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं कि एनिमल में एक बहुत बड़ा सेल पाया जाता है, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। तो मैंने बताया कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा चीज़ है इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स includes सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। एक बार फिर से मैं समझा रहा इसको। Once again, किंगडम प्लांटिंग, इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें बहुत सारे सेल्स के ऑर्गेनिज्म हैं, एक्सेप्ट सम प्रिमिटिव एल्गी। कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल नहीं पाए जाते। They have eukaryotic cells and all the cells consist of well differentiated cell organ. इनमें यूकैरियोटिक सेल होता है जो well differentiated होता है, न्यूक्लियस वगैरह सब मौजूद होता है। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, उनका सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है। They reserve their food as starch and lipids. They have plastids, यानी क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं और ये हेटरोट्रॉफिक इन नेचर, न्यूट्रिशन होते हैं। अपना भोजन ये खुद बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद दे ग्रो इन ऑल देयर लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स अपने संपूर्ण जीवन नहीं बढ़ता है, अभी मैं लिखूंगा उसमें भी। They are consist of large vacuole, इनमें एक बहुत बड़ा vacuole पाया जाता है। इनमें it also consists of eukaryotic cells, इनमें भी eukaryotic cell है, but the cells are not bonded by cell wall। लेकिन cells cell wall से bonded नहीं है, यानी कि इसमें cell wall absent होता है। Their cells are also consist of well differentiated। They have not plastids, इनमें plastids नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इसके लिए क्या है, हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन है। लेकिन कुछ एनिमल्स छोटे से जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये हालांकि फाइलोप्रोटिस्टा में पढ़ा जाता है, इसको एनिमल के ग्रुप में रखा गया है। इनमें थोड़ा बहुत प्लास्टिड पाए जाते हैं।
दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे लिकोसोलोनिया है, आगे क्लास में आप फाइलोपोरा में पढ़ेंगे। सेल्स आर एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ए लॉट ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, जबकि एनिमल से प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इंक्लूड सबसे छोटा सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है। इस प्रकार आपका ये लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का समाप्त होता है, जो मुझे समझाना है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछें, और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है इसको करना, और लाइक भी करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट भी करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।